चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके। ये सो स्टार्ट। आज ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का हमारा टॉपिक है। रौनक, आपके पास कोई है सिनेरियो या हम वैसे स्टार्ट कर लें? जी मैडम, है मेरे पास सीनियर मैम। हाँ, दैट्स ग्रेट। चलो आप सिनेरियो बताओ। जी, I'm 30 years of old patient, Gerda 2, Para 1, married since 5 years and present with a complaint of 34-week gestational amenorrhea and one alive baby and two IOD baby and also complaint of the shortness of the breath. गुड। अच्छा, सो पैरिटी क्या बोली आपने? जरा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि Gerda, आवाज हल्की आ रही yeah. है। लाउड, मैम यू हैव टू बी 30 लाउड। जी मैम 30 years of old patient, Gerda 2, Para 1 plus 0, married since 5 years, present with a complaint of 34-week gestation amenorrhea, one alive baby and two IOD baby and also complaint of shortness of the breath. नहीं, ग्रेविटा 2 पैरा 1 है तो 1 अलाइव और 2 आईयूडी कैसे हो गए? मैम ट्रिपलेट प्रेगनेंसी पेशेंट को मैम तो पूरा 34 वीक सिनेरियो की बोलो गेस्ट। ना आपके। शी इज नोन केस ऑफ ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। मैम शी इज नोन केस ऑफ ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हैविंग पूरा द वन सिनेरियो अलाइव बोलो। बेबी। 30 years of एज, ग्रेविटा 2 पैरा 1, प्रीवियस जो भी है, प्रीवियस वन है या एसवीडी है या लाइव बेबी है या नॉट लाइव है। शी इज मैरिड फॉर 5 years एंड शी इज एट 34 weeks with triplet pregnancy. Out of these triplet, one is alive and 2 IUDs. ठीक है? जी मैम। जी मैम आल्सो ताकि complaint of समझ। shortness of the breath. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑल्सो। ठीक है, गुड। बहुत अच्छा सिनेरियो आप लाए हो। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो। Ma'am, task is to take the history from the patient and do her management of the patient. And first गुड। of all, ma'am, I will introduce myself, and after mutual introductions, I will reconfirm the given biodata, and then ask the LMP of the patient. Ask the it's a first or second marriage or cousin marriage, and education status, occupation status, and then ask about the how patient conceive by any inductions or by regular cycle, spontaneous, it's a planned pregnancy or unplanned, and how it was confirmed. Then I ask the patient that its early scan is done for confirm the number of the fetus, chronicity, immunogenicity, and nuchal translucency. Is she taking the folic acid properly, or any excessive vomiting, or any over distension of the abdomen? Any history of discharge, bleeding, fever with a rash, or any lower abdominal pain, or she's feeling heat or cold intolerance, or when and how her she confirmed that there's a baby's IUD, and at that time the other remaining baby was alive, growth was normal, and like was normal, and is she is taking any aspirin tablets from the 12 week onward, or her Doppler skin was done from 16 week to exclude the twin transmission syndrome, or her थोड़ा anomaly इसका, skin योर was done. स्पीड इज वेरी फास्ट। एक आवाज ऊंची और एक थोड़ी स्पीड आहिस्ता। आपकी आवाज अभी भी बहुत हल्की है। कम क्लोजर हाँ टू द माइक एंड अपना जी। वॉल्यूम ऊंचा करो आवाज का ना, ठीक है? और हाँ थोड़ी स्पीड आहिस्ता करें क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। जी मैम। ठीक है, Ma'am, when and how she बेटर। confirmed the IUD baby at that time, other baby was normal, and the growth and stock liker was normal, and is she her Doppler scan was done from 16 week to exclude the joint and transmission syndrome, or any anomaly scan was done or not, and if she was feeling the fetal movement of the each joint or not, and then what investigation done, her blood, her sugar test, urine test was done at the time, and her BP was checked regularly, and she was any proper follow up or not, and her growth scan was done from the 24-week onward, and as the patient is complaint of the shortness of the breath, so I will ask about the what's its duration, its the severity, if she can do her daily household work, or any complaint of palpitation, chest pain, fatigueness, orthopnea, or is she in the pica and take history? Are she taking the oral iron properly? What's the complaints? And is any history of the bleeding from the nose or mouth or from any other orifices, or any history of the penile itching? And I asked the patient that how's pregnancy now going on? Is she having any complaint? And then we may ask the patient any history of diabetes, hypertension, asthma, tuberculosis, or any previous surgical history. And I asked the previous ops record, is she in the previous twin pregnancy, and how was the mood of delivery of the previous pregnancy, and any complaint intrapartum, antepartum, postpartum complication. And then ask about patient any gynae history about the contraception. Was she using Pepsimir was up to date, and is her menstrual cycle was regular, and then is she in the positive family history of teen pregnancy or any abnormal baby, and then drug history, allergy history, or any smoking history,
Then after taking the focus history from the patient, after consent, I will go for the examination of the patient. I will check weight and height of the patients to calculate the BMI, and then blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate, and look for the velar jaundice, anemia, clubbing, cyanosis, her oral hygiene, and also thyroid, and then chest examination, breast, and cardiovascular examination. And then I will do her abdominal examination, first of all from the foot end of the patient, and first of all I will do inspections to see the abdomen is distended with the pregnancy, abdominal skin, scar marks, any pigmentation and umbilical position. And then I will go for the palpation. First of all I palpate the multiple fetal poles at the fundus, then measure the symphysis fundal height and the presenting part of the first twin, and then Leica volume. But the lie and estimated fatal weight is a difficult in this case. And then fetal heart rate for each twin. And then ma'am proceed further. हम्म, आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जरा दोबारा बताओ. Ma'am, on abdominal examination, first of all, I will do inspection, and then I will inspection the abdomen is distended with the pregnancy, and then scar mark, any other pigmentation, and then I will go for the palpation. First of all, palpate the multiple fetal poles at the fundus, and then measure the symphysis fundal height, and then presenting part of the first train, and the fetal heart rate. ओके. Ma'am, अच्छा, नहीं मैं आपको यहाँ तक पहले फीडबैक दे दूं. आपका यू वर वेरी गुड. आपकी हिस्ट्री आई थिंक बहुत अच्छी थी. शायद मैं कुछ चीजें इसमें ऐड करूं, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट शायद ना हो. अदरवाइज इट वाज कंप्लीट. योर एग्जामिनेशन सीम टू बी ओके बट नॉट बैड. एक जो बड़ी बुरी बात है, आपकी स्पीड और आपकी आवाज बहुत मोनोटोनस है. आप पता ही नहीं चलता हिस्ट्री कब खत्म हुई और एग्जामिनेशन कब शुरू हो गया. मतलब इस वक्त मैं तो हम सब अटेंटिव बैठे हुए हैं एंड वी आर जस्ट लिसनिंग टू यू. एग्जाम के अंदर इतने सारे कैंडिडेट्स गुजर के जा रहे होते हैं एग्जामिनर के सामने से, और सीधी सी बात है वो सिर्फ उसे ही सुनेंगे जिसकी आवाज उस तक आएगी. प्लीज चेंज योर स्टाइल. आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको टिप बताऊंगी कि अपनी ही आवाज अपने ही मोबाइल में रिकॉर्ड करो. ये सारा केस आप अपने मोबाइल पे बोलो और फिर सुनो, एंड यू विल गेट टू नो कि आपका कितनी जगहों पे आपको अपनी टोन को ठीक करना और चेंज करने की जरूरत है. अदरवाइज एवरीथिंग वाज आई थिंक वेरी गुड. लेकिन शायद आप इसमें अगर 50% या 60% भी ले लो तो बड़ी बात है, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चल रहा कि आपने वो पॉइंट्स बोले हैं या नहीं बोले. सच्ची बात है. सिमिलरली यू डिड एग्जामिनेशन, मुझे तो पता ही नहीं चला आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कब बोल के फारिग भी हो गए. हालांकि मार्क्स तो सारे उसके ही थे ना. और इसी तरह हिस्ट्री में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं सुन रही थी गौर से, जो आप बोल रहे थे एक्चुअली, विच इज वेरी गुड. आप बड़ा अच्छा प्रिपेयर करके आए हुए हो. बट फायदा कोई नहीं, क्योंकि इसमें मैंने आपको कहा है कि बॉर्डर लाइन पास भी हो जाओ तो बड़ी बात है, क्योंकि एग्जामिनर के तो कानों तक आवाज ही नहीं आ रही. प्लीज अपनी आवाज और मुंह पूरी खोल के बोलो. वहां पे सर्वाइवल की गेम है, ठीक है ना. अगर वहां तक आपको आते हुए भी आप नहीं पहुंचा सक रहे हो एग्जामिनर, यानी इस हिस्ट्री में अगर आप फेल हो जाओ तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा अपने ऊपर. कितनी अच्छी आप हिस्ट्री बोलो और फिर भी आपके 50 या 60 वो एग्जामिनर दे रहा हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं आपने वो पॉइंट्स बोले या नहीं बोले. यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर टोन. देखो आप ऊपर नीचे करो. आप आपके हिस्ट्री खत्म. आप जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन बोल रहे हो उसमें आपने अगर पैलर और वाइटल्स मेंशन कर दिए, नाउ यू आर गोइंग टू द बाकी का कोई एग्जामिनेशन में भी उसके एडीमा पे या वो थोड़ा सा तो, बिकॉज अब देखो ट्रिपलेट में यू नो एडीमा इज सो इम्पोर्टेंट. मे बी पैलर एंड एडीमा दो चीजें जो हम देखना चाह रहे हैं. शायद जॉन्डस और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और ये वो पे एग्जामिनर का भी ध्यान नहीं है, लेकिन जिस पे आप चाहते हो कि एग्जामिनर ध्यान दे, अपनी टोन ऊपर नीचे करने की आदत डालो. दिस एग्जाम इज नॉट ओनली फॉर टेस्टिंग योर नॉलेज. मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, ये नॉलेज का सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये आपका एटीट्यूड का भी एग्जाम है. नॉलेज और स्किल्स होते हुए भी अगर फेल हो जाओ तो कितनी बुरी बात है. आपको अपना एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को भी उतना ही ठीक रखना है जितना आप बाकी चीजों को कर रहे हो. सो इस चीज के ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा. 1 हफ्ता लगेगा. कीप ऑन स्पीकिंग ऑन योर फोन बाय योर सेल्फ. अपनी आवाज आप अपने फोन पे सुनो और अपना वो ठीक करो, ठीक है. अच्छा, सेकेंडली उसके अलावा एग्जामिनेशन देखो, जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है ना, उसकी आप लोग को ट्रिपलेट भी आ सकता है और ट्विन भी आ सकता है. ट्विन के आम जिंदगी में ट्विन
से इनकाउंटर करना ज्यादा कॉमन है। लेकिन ट्रिपलेट भी अगर एक भी पेशेंट आपका ट्रिपलेट आ जाए तो आई थिंक उसके ऊपर आपकी पूरी नॉलेज निकल जानी चाहिए। कोई भी मल्टीपल प्रेगनेंसीज का पेशेंट आता है तो आपने उसको एग्जामिनेशन में, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका बिल्कुल ठीक था, बट आप उसके अंदर मेंशन क्या करोगे? इंस्पेक्शन तो आपने कर ली, थोड़ा आपका एग्जामिनेशन का सीक्वेंस ठीक नहीं था। उसके अंदर आपने इंस्पेक्शन के बाद जब पेल्पेशन की टेंडरनेस देख ली, उसके बाद आप सबसे पहले तो फंडल हाइट देखते हो ना। फंडल हाइट के बाद आप मल्टीपल फीटल पोल्स देखते हो, जिससे आपको अंदाजा होता है कि मे बी दिस इज मोर देन वन बेबी, ट्विन और ट्रिपलेट है। उसके बाद आप प्रेजेंटिंग ट्विन का प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हो, उसके उससे ज्यादा आप फिर मेंशन करो, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फीटल पार्ट्स एस्टिमेटेड बेबी वेट कैन नॉट बी डन, या आई कैन नॉट comment on the baby weights because of the multiple fetal parts felt. Similarly, amount of liquor cannot be assessed, etc etc, ये सारी बातें। लेकिन इसके अंदर कुछ दो तीन चीजें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि पैलर तो इम्पोर्टेंट था ही, बट इसके अंदर एडीमा भी इम्पोर्टेंट था, इसके अंदर वेरिकोस वेन्स भी इम्पोर्टेंट थी, बिकॉज इतना प्रेशर एब्डोमेन पे आ रहा है कि वो नीचे से वेरिकोसिटीज बना रही है। ये बातें हैं तो बड़ी आसान, लेकिन वही बात है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करो और इन चीजों को एम्फसाइज कैसे करो, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आपके ये नॉलेज है कि आपने मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें मेंशन करनी है। इसी तरह हिस्ट्री के अंदर, योर हिस्ट्री वाज ऑल राइट, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा और सुनना चाहती थी रिगार्डिंग आईयूडीज। एंड यू कुड हैव स्टार्टेड कि चलो ठीक है, अगर उसका शी इज नोन केस ऑफ ट्रिपलेट विद टू आईयूडीज, तो यस प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री इंस्टेड के आप आगे जाकर लेते कि जो के पास प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री में आता है, तो आप यहीं से लेना शुरू करते कि कहीं पहले तो नहीं यूजीआर भी था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद कि क्या उसे सिंगल प्लेसेंटा बताया गया है या तीन डिफरेंट प्लेसेंटी बताए गए हैं, या फिर उसको दो प्लेसेंटी एक बताए गए हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो चीजों को, इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा कोई भी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, उसके अंदर वी नो कि हर चीज बढ़ जाती है, टू बिगिन विद हाइपरएमेसिस एंड टू टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो उसको होगी। इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ही सीम्स लाइक बिकॉज ऑफ द वेट्स ऑफ द बेबी है, बट आप उसमें सब बाकी कॉजेज भी खुदली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की करोगे, क्योंकि इसमें अनीमिया भी साथ ही होगा उसको, इसलिए शायद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। और उसके अलावा आपने क्विकली ब्लड प्रेशर से लेके थोड़ा थोड़ा आपने प्री एक्लेम्पशिया तक की हिस्ट्री थोड़ी सी ले लेनी है, कि जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग्स और हेडेक और विजन और एपिगैस्ट्रिक पेन वगैरह का तो इसको प्रॉब्लम है। तो ये सारा भी आपने सीक्वेंस वाइज लेना है। और आईयूडीज की जहां बात हो गई, उसके अंदर कोएगुलेशन डिसऑर्डर की भी बात आप करोगे कि क्या हफ्ते में 2 दफा उसके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं जब से उसको पता चला है, या फिर ये कि कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपने सीक्वेंस वाइज कवर करनी है। यू वर टचिंग एवरी पॉइंट, बट आप उसको एलैबोरेट करके नहीं बोल रहे थे, जहां तक मुझे आवाज आई है। यानी कि आप क्लैरिटी से नहीं बोल रहे थे, क्योंकि आपने एग्जामिनर को इस चीज की क्लैरिटी देनी है कि आपको पता है ये बातें कि ट्रिपलेट से रिलेटेड, और स्पेशली अगर आईयूडी हो गए, तो आपने इस चीज को और ज्यादा एलैबोरेट करके करना है, कि ताकि पता चले ना, आईयूडी होता है तो आपको पता है कि आपने हफ्ते में 2 दफा टेस्ट कराने हैं और वो सारा कुछ। और यहाँ तक ये भी कि जो तीसरा बेबी अलाइव है, क्या उसका अल्ट्रासाउंड और उसका ब्रेन का डॉपलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुआ है, और वो सारी चीजें, तो वो आपने साथ साथ करना है। ठीक है, सो गुड। बट ओवरऑल ठीक था, बट अगेन बिकॉज ऑफ द स्पीच आप मार खा सकते हो। तो प्लीज इसको बहुत क्लैरिटी से देखो इस वक्त। अगर जैसे आप यही नोट कर लो कि अगर मैं बोल रही हूँ, तो मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है हर सूरत, और सिर्फ पहुंचानी नहीं है, मेरा तो ये भी है कि किसी तरह आपके जहन में भी बैठ जाए कि एग्जाम में जाके चाहे आपके कानों में मेरी आवाज आए। सो मैं बहुत क्लैरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग इन अ वेरी, मैं बहुत स्पीड से नहीं बोल रही, मैं बहुत ज्यादा लेकिन बहुत स्लो भी नहीं बोल रही, और क्लैरिटी और ऊंचा, और उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, बिकॉज वही अगेन ये तो पास फेल ना हो जाए इस बात से। जी साइमा ने कोई क्वेश्चन करना है? मैडम, ये मेरे वाले दिन आया था सिनेरियो, और उसके अंदर पेशेंट जो थी वो हाइपरटेंसिव भी थी, और उसकी जो थी वो मुझे फिब्रिनोजेन और सिनेरियो से एचबीडी। पता चल रहा है, जी। हाइपरटेंसिव भी होगी, एनीमिक भी होगी, और आई एम श्योर ये आईयूडी जो है प्रॉब्ली आईयूजीआर की वजह से हुआ है, बिकॉज आई डोंट थिंक ये मोनोकोरियोनिक जी मैडम। डायकोरियोनिक सिनेरियो था। इट मस्ट बी द आईयूडीज मस्ट बी बिकॉज ऑफ द आईयूजीआर, एंड शी मस्ट बी हाइपरटेंसिव। ये इनकी सिनेरियो की स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है, बेशक उसके अंदर ना भी दिया हो।
और मैडम ये मैडम पूछ रही थी कि अब वो 30 वीक्स पे पेशेंट है, अब तुम इसको आगे कैसे लेके चलोगी, टर्मिनेट करोगी? उसका तो पहला बच्चा है, उसको तो बच्चा चाहिए, 2 फोर्थ हो चुके हैं, अब क्या करोगी? जो मर पहला चुके हो हैं या उसके ऊपर। चौथा हो, प्रेगनेंसी तो प्रेशियस है ना, इस वजह से टर्मिनेशन का तो हमें डिसीजन, चाहे पहला हो या दूसरा हो या चौथा हो, जी टर्मिनेशन का मैडम, वो डिसीजन तो डिपेंड नहीं करता। एफडीपी रेंज थे और उसके हिसाब से पूछ रही थी। हम्म, वो तो देखो, टर्मिनेशन इज डिपेंडिंग हेयर ऑन द मैटरनल कंडीशन प्रेफरेबली, और फिर फीटल वायबिलिटी से ऑन द सेकेंडरी थिंग, नॉट ऑन द बेस कि उसको बेबी चाहिए या नहीं चाहिए या उसका पहला या चौथा है, ठीक है। तो टर्मिनेशन तो ज्यादा डिपेंड कर रही है उसके ओवरऑल कंडीशन पे, ये इस पे भी हम भी बात करते हैं। डॉक्टर रौनक ने गलती से 34 वीक्स कह दिया, 34 वीक्स पे तो कहानी खत्म हुई हुई है। सो वी कैन टेक इट टू 30 वीक्स, उस पे हम आगे बात करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज गुड मी रौनक। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी मैडम डॉक्टर, ये एक्चुअली 34+5 वीक्स आया था हमारा मैडम वेरी कराची गुड, ये में। तो आसान है। मैडम जी 34 वीक पे आया था एक दिन पे। फिब्रिनोजेन उसका था डिरेंज्ड एफटीपीज। जी, उसकी जो थी ना 34+6 डेज की प्रेगनेंसी थी, और है। मुझसे एग्जामिनर ने कहा कि शुरू हो जाओ। तो मैं तो शुरू हो गई, जैसे हिस्ट्री एग्जामिनेशन ये वो, तो मैंने जब सब कुछ पूरा कर लिया तो मैं उसके मुंह पे देख रही थी कि अब मुझसे मैडम कुछ सवाल पूछे, तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा। आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट ऑन द टेस्ट। तो मुझसे कहती ये बताओ कि अब इसका तुम क्या करोगी। तो मैंने कहा मैडम एज पर रिकमेंडेशंस, मेरा यही एक जवाब था कि बिकॉज शी हैज पास द एज, गेस्टेशनल एज आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो 33 से होती है एज पर नाइस गाइडलाइन। तो फिर वो उसने मुझे कहा कि अच्छा तो तुम सिजेरियन से डिलीवर करवाओगी। तो मैंने कहा जी मैडम, माई प्लान इज फॉर द, बिकॉज 1 बेबी इज अलाइव एंड 2 बेबीज आर आईयूडीज। तो मैंने ये बताया, तो फिर यहाँ वाइवा खत्म हो गई। ठीक है, बट इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो साइमा ने बताया कि इसके एफटीपीज डिरेंज थे प्रॉब्ली। मैडम हेलो जी जी। मैडम, ये पेशेंट दो केस आए थे मैम। एक दिन पे आया था ट्रिपलेट वाला विथ 1 IUD, और मैम दूसरे दिन आया था ट्रिपलेट विथ 2 IUD। तो ये मैम थर्टी ठीक फोर है, वीक पे थी वी कैन डू प्रेगनेंसी। एनी केस, आप सारे केसेस हाँ एग्जाम के छोड़ दो, हम वो केस करते हैं जो आपने अभी बोला है, ठीक है। सो वी कैन डू विद मैम टू इसकी आईयूडीज एंड 34 वीक्स, मैम इसकी इसको लेके आगे इन्वेस्टिगेशन चलते हैं। मैम जी, इन्वेस्टिगेशन मैं बताऊँ इसकी। बताएं। मैं first of all I go for the best investigation for the general well-being of my patient, complete blood count, HB platelet and total lymphocyte count, and RBCs indices, and then blood group with RH factor and fasting blood sugar and hepatitis B surface NTC antibody and mid serum urine for the protein, pus cells and sugar, and then specific investigation the coagulation profile PT APTT, and then serum fibrinogen of this patient, and then dating ultrasound, and then an anomaly ultrasound, and then recent ultrasound and MRI if available. हम्म हम्म, मैम अच्छा गुड, एमआरआई, ओके, ठीक है। सो एफटीपीज कहना भूल गए शायद, मैम बता दी कोगुलेशन प्रोफाइल मैम उसके जिसमें अंदर आप पी। भूल गए थे, कोई बात नहीं। अच्छा, सो एमआरआई क्यों करा रहे हो? मैम पेशेंट बेबी आईडी हो गए मैम, 4 वीक हो गए, तो इसमें देखने के लिए कि उसको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में कोई ब्रेन इंजरी के लिए भी हम देखते हैं, MRI करवाते हैं। देखो, आपका पेशेंट पहले ही 34 वीक्स पे है, और अच्छा खुदा ना खास्ता एमआरआई आपका आ जाता है कि ब्रेन इंजरी है, फिर क्या करोगे? मैम इंजरी हो गई तो उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट मैम अलाइव बेबी है, उसके लिए मैम उसको हम प्रेगनेंसी को एक्सपीडाइट कर सकते हैं डिलीवरी, ताकि रिमेनिंग जो बेबी अलाइव है उसको ज़्यादा डैमेज ना हो ब्रेन का। अगर डैमेज, तो फिर क्या आपकी मैनेजमेंट प्लान चेंज हो रहा है? मैम चेंज नहीं होगा मैम, जो डैमेज हो गया सो वो हो गया। तो अब फिर तो मैम एमआरआई का उसको क्या फायदा हो गया? एमआरआई तो मेरा ख्याल है कितने का होता है, 18-20 हजार का तो होता है, और अगर आप गवर्नमेंट साइट पे कराओ तो बारी नहीं आती है, अगर बारी आ भी जाए बड़ी क्वारी के बाद तो भी मेरा ख्याल है कोई पैसे लगते हैं एमआरआई के। देखो बात मैम ये, अगर आई डोंट सी जी, मैम अगर 30 वीक्स हो तब तो करवाएंगे ना एमआरआई। यही बात करने लगी हूँ। देखो द थिंग इज, आई डोंट थिंक एंड आई डोंट, हैव यू एवर डन एमआरआई ऑफ एनी प्रेग्नेंट पेशेंट इन योर वार्ड? किसी ने किस नो ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग?
किसी एक ने किसी ऑप्स के पेशेंट का कभी एमआरआई कराया तो मुझे बताओ। नहीं। एक्रीटा में फिर भी जस्टिफाइबल है, हम वो भी नहीं कराते हाउएवर, लेकिन अदरवाइज किसी प्रेग्नेंट पेशेंट का जिंदगी में कभी कोई एमआरआई देखा है तो बता दो। मैंने तो नहीं देखा कभी। ट्रेनिंग छोड़ो उसके बाद की 10-12 साल भी, उससे ज्यादा वो सीपीएस किए हुए भी 15 साल हो गए, तब भी नहीं देखा। नहीं मैम होता, जो नहीं करते वो क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं। देखो 34 वीक्स पे आप पेशेंट का एमआरआई, आप उसका डॉपलर करा लो सेरेब्रल वेसल्स का, उससे आपको ब्लड फ्लो का पता चल जाएगा। उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। देखो द थिंग इज कि इसमें तो खैर वैसे ही 34 वीक्स पे पहुंच गई है, आपने बेबी को अब डिलीवर करना है अगले को जो लाइव है। फिर अब पैदाइश के बाद उसकी सारी चेकअप और असेसमेंट होगी, वो पीड्स वाले करेंगे कि क्या करना है, उसके बाद पता चलेगा। अगर ये 30 वीक्स पे होती है, 28 वीक्स पे भी होती है, हम फिर भी ना एमआरआई कराते, बल्कि उस पर तो बिल्कुल ही ना कराते। क्या हम 30 वीक्स पे फिर कराते, फिर 32 वीक्स पे फिर एमआरआई कराते? ब्रेन डैमेज तो कभी भी हो सकता है, कितने एमआरआई कराते? तो कभी नहीं कराया हमने। इंस्टेड हम डॉपलर करा लेते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का। ऐसा ही है ना जी जी मैम, ऐसे ही है। कि एटलीस्ट पेशेंट को काउंसल कर दें। अगर 30 वीक्स पे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर में प्रॉब्लम आ रही है तो एटलीस्ट यू कैन बी काउंसल्ड, दैट इज इट। क्यों? वो भी ये क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लग रहे उसमें। एक पेशेंट डॉपलर के लिए गई है तो उसके साथ ही वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर भी कर देंगे। उसमें बस बस वो ब्लड फ्लो देख लेते हैं कि तेज है कि नॉर्मल है या क्या है, उससे अंदाजा होने हो जाता है। उससे ज्यादा उसकी भी सेंसिटिविटी इतनी नहीं है, एमआरआई की भी नहीं है, किसी भी चीज की नहीं है। तो एमआरआई क्या हर 2 वीकली? इतना एमआरआई होता तो जिंदगी में कभी एक दफा तो हमने किसी ऑप्स के पेशेंट का एमआरआई अपने हाथ में पकड़ के देखा होता? हमने तो जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। यही एग्जाम में सोच लिया करो कि जो चीज आप नहीं डिपार्टमेंट में कर रहे वो आप इन्वेस्टिगेशन एग्जाम में कैसे मांग सकते हो, वो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। और सच्ची बात है, प्राइवेट में तो एमआरआई बहुत महंगा है। और तो आम पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल ही ज्यादती हो जाए। और गवर्नमेंट में भी एमआरआई कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि होता हो जाए। और जाहिर है जब जरूरत हो तभी हो। आई आई डोंट सी एनी गाइडलाइन रिकमेंडिंग एमआरआई स्पेशली फॉर दिस टाइप ऑफ केसेस, ठीक है? तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। इंस्टेड आप इसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड मांगो, BK-ST रेशो मांगो उसका अम्बिलिकल आर्टरी का, ताकि हमें पता चले कि अभी जो बेबी अलाइव है ये तो खैर 34 प्लस पे है, इस पे तो आप उसको डायरेक्ट सिजेरियन की डेट दे दोगे। इंस्टेड अब जो है अगर 30 पे होता है या 28 पे होता तो डेफिनेटली हम इसका डॉपलर कराते ना, और सीरियल ग्रोथ स्कैन्स, तो उसमें ये होता। तो पहले इसका आप जल्दी से मैनेजमेंट प्लान बता दो, फिर हम इसकी जेस्टेशन जरा पीछे ले जाएंगे। मैम इन्वेस्टिगेशन में बताऊं, जिसमें बताया गया था कि एचबी इसकी इसके मैम अंदर 8 थी। दूसरी चीज ये प्लेटलेट कि ऑफ कोगुलेशन, मैम जी एचबी प्लीज। वाज 8 gram per हम्म deciliter, and platelet was normal, total lymphocyte count was normal, and mem coagulation profile was normal. And on dating scan, it was a monoclonic triamniotic triplet pregnancy. And mem anomaly scan was normal, and according to recent scan, she was alive baby was 34 week, and IUD baby and BPD, and according to the biometry, the IUD baby was 30 week of gestation, and alive baby was at 34 week of gestation. हम्म ठीक है, so good. And she was not hypertensive, right? नो मैम, ये was hypertension है। नहीं थी। ठीक है, आप इसकी अब मैनेजमेंट बोलो। First of all, I will complete my missing investigation and then counsel the patient and her attend her family members and educate the patient and family members in very empathic way and explain the diagnosis that she has a triplete pregnancy and one alive baby and two already baby and also having the anemia. So she is in very high risk pregnancy. So I tell her about the fetal and maternal implications and educate the patient that is she having the two already IUD baby, so this baby is also at the risk of intrauterine death about the 15%, and the neurological development problem 25%, and need of the NICU admissions and placenta abruptio, and so the mothers so the patients are mentally prepared for this, and the mother implication that she is at the risk of increased blood pressure, preeclampsia, and also the prolonged admission or repeated admission to the hospital,
pressure symptoms, and GDM she can develop. So I counsel the patients in a very empathic way that the two twins are already IOD. So this baby is also at the risk. And if because all babies they are sharing the one placenta, if the other babies if the previously the vascular communication is not develops, so it can develop in the coming days and weeks. So she should be aware about this. And so we also the need of the early intervention or early delivery can be done. So, so my patient's at 34 weeks with a 2 IOD baby and also complain of the shortness of the breath. So I'll offer the admission to my patient the ward, and I involve the multidispensory team as a senior obstetrician, as Miss pediatrician, anesthetic, radiologist according to the need. And I first of all I correct her hemoglobin and transfuse the 1 pint of the pixel volume to relieve her symptoms, and then remaining then I will rebuild her HB by parental transfusion, count according to the Gassori formula, count the doses, and then I start her the fetal maternal surveillance in the hospital, and I monitor the mother for the I will check her vitals and any bleeding signs to rule out the DIC and the her blood pressures for the preeclampsia and hypertension. I also start a Dopplers for the to rule out the vascular communication between the fetus and fetal monitoring. I will auscultate the fetal heart rate, and as she's at the 34 weeks, so I increase the frequency of monitoring. I do her CTG 2 weekly daily and 2 times in the Mhm. week, and also Doppler weekly, and also her growth score 2 to 3 weekly, and OPS ultrasounds for the estimated fetal weight and for fetal well-being, and the kick count chart and biophysical profile, and also our coagulation profile 2 weekly, and to see if I also give the stress cover. If and I properly monitor the patient, if she I keep admit the patients in the ward. If she can come on the follow-ups, or I will also discharge her if she can. Till what um, time you will keep her monitoring and you will keep her admitted? ma'am at कहाँ 34 तक weeks, लेके जाओगे? मैम आई विल, यस मैम, तो अभी तो मैम माई एम, 34 हाँ हाँ मैम, यही ठीक बता रही है. हूँ, एम टू डिलीवर एट द 36 वीक, माई एम Your इज टू डिलीवर patient was at 36 वीक. 34 weeks, Rana. जी मैम, माई एम इज टू डिलीवर द 34 वीक, सो आई कीप हर 36 मॉनिटरिंग weeks. प्रॉपर. जी मैम 36 वीक, सो आई कीप हर properly monitoring of the patient. If everything is okay and the baby is having the normal Doppler scan and ultrasound and biophysical profile and Likert is normal, so I continue monitoring of the patients up to 36 week, and after that give the stretch cover and deliver by the C-section. Because ma'am, according to hello, ma'am, according to guideline, we have to deliver the triplet pregnancy at 35 weeks. But in our setup, we have the not a good nursery care. So I According to try to deliver. guideline, there are chances of IUD. A lot of chances of IUD if triplet is taken beyond 35 plus 6 weeks. तो क्या आप आईयूडी की तरफ जाओगे कि इंस्टेड के उसे करो? नहीं, देखो ट्रिपलेट तो मेच्योर हो जाते हैं 35 पे, ट्रिपलेट्स मेच्योर हो जाते हैं. अगर ट्विंस 36 पे मेच्योर हो जाते हैं तो ट्रिपलेट 35 पे हो जाते हैं. जो 38 या 39 पे हमारी टर्म का सिंगल बेबी होता है वो ट्विन होता है 36 पे, और ट्रिपलेट होता है 35 पे. तो आप किस चीज की नर्सरी का? बिल्कुल भी नहीं प्लीज. और यहाँ पर तो 2 आईयूडीज हैं. आप तो लकी हो कि पेशेंट 34. ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है. आप बहुत क्लियरली नाइस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि 35 प्लस 6 तक भी अगर पेशेंट चला जाए तो आईयूडी हो जाएगा ट्रिपलेट में. जैसे हम नर्सरी के लिए IUGR या हाई एसडी रेशियो 30 वीक्स पे भी अगर रिवर्स एंडास्टोलिक फ्लो आ गया है तो क्या हम नर्सरी की वजह से उसे प्रोलॉन्ग करते जाते हैं? नहीं. when we know कि now is the time that it should be delivered, then we have to deliver it, right? So इस तरीके से नहीं करना. आप 34 वीक्स पे मॉनिटरिंग तो बहुत अच्छी बोल रहे थे, लेकिन 34 वीक्स पे नहीं करना. किसी ने कहा है सदफ ने कि MRI कराएं चैट के ऊपर. प्लीज इस चीज की क्लैरिटी कर लो. मैंने कई दफा भी लेक्चर में नहीं 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 बोला कि MRI नहीं कराना. उसकी वजह ये है कि प्लीज एग्जाम के अंदर जो आप अपनी ट्रेनिंग में कर रहे हो वो करो. हैव यू एवर, आपने कभी पकड़ा है कोई MRI की रिपोर्ट? हमने देखो, बात यह है कि बहुत चीजें ठीक है, गाइडलाइन में आप जस्टिफाई भी कर सकते हो. प्रॉबेबली अगर आप बहुत स्ट्रांगली भी बोलो कि आप चलो ठीक है पेशेंट की काउंसलिंग के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो प्रॉबेबली इस पे बहुत लंबी बहस ना हो.
लेकिन इसमें टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा आपका। इंस्टेड जो बातें मैंने आपको कही उस तरीके से आप करके आगे चलो, और वही प्रैक्टिकल बात है आपके सेटअप में भी और आपके जो है पेशेंट्स के लिए भी, रिसोर्सेस को लेकर भी। ठीक है, तो आपने इवन कई दफा हम एक्रीटा में भी एमआरआई पे बहुत जोर नहीं लगाते। हम कहते हैं कि हम डॉपलर से या हम अल्ट्रासाउंड की वेस्कुलरिटी और उससे ही हम डायग्नोस करके कर लेंगे, तो भी एग्जाम में आपको इस बात पर नहीं पकड़ा जाएगा कि आपने एमआरआई नहीं कराया। लेकिन अगर आप फिर भी हमारा इसको जस्टिफाई करो, जो कि कई दफा हम हमें कराना भी पड़ जाता है परक्रीटा को रूल आउट करने के लिए, तो चलो ठीक है। बट वेरी वेरी रेयरली, आई थिंक मैंने जिंदगी में एक या दो ही पेशेंट को का एमआरआई देखा होगा कि परक्रीटा को डायग्नोस करने के लिए कराया है। अदरवाइज तो हम हजारों क्रीटा देख चुके हैं, हजारों पर क्रीटास देख चुके हैं। हम अल्ट्रासाउंड पर रिलाई करते हैं, और हम तैयारी अपनी वही करते हैं कि हर मरीज, अल्लाह ना करे, जिसका क्रीटा आ गया या जो लो लाइन प्लेसेंटा है विद प्रीवियस 2-3 सिजेरियंस, हम उसकी तैयारी क्रीटा वाली करके ही स्टार्ट करते हैं। तो चाहे वो अंदर से एमआरआई ने कुछ भी बताया हो, तो इसलिए एमआरआई की उधर भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। तो ट्विन के अंदर ब्रेन को देखने के लिए, लाइव ट्विन का, तो क्या आप एमआरआई उसके 2 वीकली कराओगे? ऐसा तो कहीं रिकमेंडेड नहीं है। और एक एमआरआई से आपको क्या हासिल हो जाएगा? सो प्लीज इस पे नहीं बहस करनी। सो सेकेंडली ये कि रौनक, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इसको अच्छा एक काम करो, जब आपको उनका इंशाल्लाह एग्जाम होने वाला है ना, एक अपने पेपर में या रजिस्टर में या जो भी, अगर कोई पॉइंट्स कहीं लिखे हुए हैं, उसके आखिरी पेज पे ना एक पेज बना लो जिसके ऊपर आपने लिखा हो कि कौन सा बेबी आपने कब डिलीवर करना है। कोलिस्टेसिस वाला कब डिलीवर करना है, प्री प्रॉम वाला कब डिलीवर करना है, आपने मोनोकोरियोनिक ट्विन को कब डिलीवर करना है, डायकोरियोनिक ट्विन को आपने कब डिलीवर करना है, आपने पीआईएच को कब, पीआईएच विदाउट कॉम्प्लिकेशन को कब करना है, पीआईएच विद कॉम्प्लिकेशन को कब करना है, माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, सिवियर प्री एक्लेम्शिया को कब करना है, डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन को कब करना है, डायबिटीज विदाउट कॉम्प्लिकेशन को कब करना है, एंड देन सिमिलरली ट्रिपलेट प्रेगनेंसी को कब करना है। सो ये सारी एक लिस्ट इसलिए बना के याद कर लो और रोज रिवाइज किया करो, क्योंकि एग्जाम में जाकर आपका इवन कई दफा क्लिनिक में भी बैठ के आपका कई दफा नहीं दिमाग में आता कि अच्छा ये कोलिस्टेसिस है, इसको मैंने इतने वीक्स तक लेके जाना है, इससे आगे नहीं लेके जाना, या ये जो है पीआईएच विदाउट कॉम्प्लिकेशन है, या डायबिटीज ऑन डाइट कंट्रोल है, तो मैंने इसको कहाँ तक लेके जाना है। ये जब आपने याद किया होगा ना कि मैंने इसको 40 तक लेके जाना है, इसको 38 से आगे नहीं लेके जाना है, इसको 36 से आगे नहीं लेके जाना है, इसको 37 तक लेके जाना है, ये सारी चीजें, ये आपको सारी जिंदगी बहुत आसानी देंगे, और एग्जाम में तो बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर इतना अच्छा बता के, रौनक वाज गोइंग वेरी गुड, क्योंकि आई लाइक हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन ऑल्सो, और इन्वेस्टिगेशन एवरीथिंग इज गुड। बट एंड पे आके टाइम ऑफ डिलीवरी पे इतना बड़ा ब्लंडर, बंदा कहे कि 34 वीक्स पे और मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग, मतलब इसमें तो ये है कि आप डेक्सा कवर की बात करो और फौरन से डिलीवरी का प्लान करो। ट्रिपलेट में, ट्विन ऑब्वियसली ट्रिपलेट में तो फिर वो मोड ऑफ डिलीवरी हम डिस्कस करते हैं। अफशा ने बड़ा लंबा सवाल लिखा हुआ है, तो सॉरी मैं अब इस वक्त पढ़ नहीं सकती। अफशा, आप हैंड रेस करके बोल लो उस क्वेश्चन। ठीक है, तो सदफ इज शेयरिंग वेरी गुड डॉक्यूमेंट्स एंड चैट ऑल्सो, वो भी आप लोग देखते जाओ जी। किसी ने हैंड रेज किया जी, पूछिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, वालेकुम। मैंने पूछना था कि इसमें अब हम मिडल सेरेब्रल ऑर्टरी फिर वीकली कराएंगे डॉपलर मैम? हाँ, हर ट्रिपलेट्स में। चीज वीकली तो नहीं, क्यों वीकली कराएंगे? 2 वीकली आप कराओ डॉपलर, और साथ ही 2 वीकली अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो ठीक है। अगर खुदा ना खासा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में फास्ट ब्लड फ्लो आ रहा है, या आपको लग रहा है कि वहां पे कोई ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट डेवलप हो रहा है, यू कैन काउंसिल द पेशेंट अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें फिर आपकी टाइम ऑफ डिलीवरी थोड़ी अर्ली हो जाएगी। फिर यू विल नॉट वेट टिल टर्म इवन, जहां भी वाइबिलिटी अचीव होगी आप वहीं पे ही उसकी सिजेरियन का प्लान करोगे। इवन 32 वीक्स पे ट्रिपलेट्स बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, ताकि बहुत ज्यादा ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट ना डेवलप हो जाए। ठीक है। एक्सक्यूज मी ठीक है मैम। मैडम। मैडम, हम्म, जैसे ये मेरी भी स्टेशन थी ना, तो आई अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग इंटरेस्टिंग, कि जो एग्जामिनर थी ना, जो मुझे कहा कि शुरू हो जाओ, मैं ऐसे ही बोलती जा रही, बोल बोल के जब मैं थक गई, ठीक तो है। वो शायद एक ही सवाल सुनना चाह रही थी कि अब तुम क्या करोगी, तो नहीं क्या देखो, मे तुम्हारा भी और प्लान भी है? बड़े हाँ। सवाल होंगे जो आपकी बातों में हाँ, कवर हो गए होंगे। यू मस्ट बी, आप अच्छा ही बोल डेफिनेटली। रहे थे। तो उसके बाकी, इसलिए शी वाज अ गुड एग्जामिनर। उन्होंने कहा सिनेरियो आपके सामने है, आप बोलते जाओ, एल एल सी एल एस एस यू कि आप क्या कर रहे हो।
तो उधर से ही उन्होंने देखा फिर जो चीज रह गई तो उन्होंने आपको, एक्चुअली शी वाज अ गुड एग्जामिनर, कि उन्होंने इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय आपकी पूरी बात सुनी है, उसमें उनके सारे जवाब आ गए होंगे तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन एंड पे तो कर फिर लिया। मैंने फिर ये एक लाइन पूरा सेंटेंस बोला कि एज अकॉर्डिंग टू सिनेरियो शी इज 34+6. So I will not proceed further. I will fulfill all the formalities and then I will proceed toward delivery of the baby. अब ये मुझे अब तक श्योर नहीं है क्योंकि मैंने जब गाइडलाइन खोल के देखी है तो मुझे लगता है कि मैंने सही जवाब दे के आई हूँ कि सिजेरियन करके वो जो अलाइव बच्चा है वो आर डिलीवर यू करवाना है। वेटिंग 30? देखो ये इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, सबसे अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आप नहीं करते हो तो आर यू वेटिंग के हफ्ते बाद उसकी कोएगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज हो और फिर उसके बाद आप अपना कुछ करने वाले नहीं बन रहे हो, पहले एफएफपी लगा के कोएगुलेशन ठीक कर रहे हो, इतनी देर में वो पोस्ट टर्म हो गया बच्चा, बच्चा जो बच भी गया तो फिर वो जाके आईयूडी हो जाए, तो ये तो मैम बड़ा डेथ हो जाती है ना। हाँ, यही मैंने उन्हें और कहा था कि दूसरी एक मैडम और इसमें चीज, हाई रिस्क है इंट्रायूट्राइन डेथ के आफ्टर थर्ड बेबी, तो मैं इसे जल्द से जल्द सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवर। तो उसने मुझे कहा अच्छा तुम सी क्योंकि बेबी सेक्शन करोगी। वायबिलिटी बिल्कुल सी सेक्शन हाँ होता है ना ट्रिपलेट पे, तो जी जी जी। सेकंड तो ट्रिपलेट पे रौनक ने, सॉरी मैं भी आपके सुनती है, बड़ा इंपॉर्टेंट को फिर मिस ना हो जाए, शी हैड 8 HP, 8 HP पे मैं तो एक ब्लड नहीं लगाऊंगी बिकॉज ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, शी इज एट हाई रिस्क ऑफ पीपीएच ऑल्सो, मैं तो उसको 2 ब्लड लगा के 2 पैक्सा लगा के उसके बाद मे बी 2 इन हैंड रख के फिर मैं इसका सिजेरियन करूंगी, ठीक है ना। सो रौनक यू हैव टू बी ओवर सेफ इन एग्जाम, आप अपना HB 8 से 9 की जगह आप एटलीस्ट 10 तक रखो, उसके बाद क्योंकि फिर एनीमिया हो जाता है ना सिर्फ ट्रिपलेट से बल्कि एनीमिया की वजह से भी पीपीएच होता है, तो आपने प्लीज इसको इस तरीके से रखना है जी। पहले ये जो 8YT मैम है इनका पहले क्वेश्चन होगा फिर अफशान का। मैम जी हाँ मैम, अब इसको हम 34 पे डिलीवर आप अपना करेंगे नाम भी सपोज, बता जैसे दो डॉक्टर। बिकॉज आई कैन नॉट सी योर नेम जी। मैम मेरा नाम अनीला है मैम, अनीला, मैं चेंज अलीना करती हूँ, जी, सॉरी योर अलीना नेम पहले ना। बताएं, नो प्रॉब्लम जी जी। मैम मैं पूछ रही थी कि इसको फिर हम जैसे डॉक्टर रौनक ने 30 वीक्स पे बताया है ये वाला बेबी ना जो अलाइव है, हाँ तो इसको हम 34 वीक्स तक लेके जाएंगे अब पेस्टिसाइड के बाद फिर ये 30 डिलीवर वीक्स और कर। 28 वीक्स पे हम आते हैं, ये सिनेरियो हम पूरा बदलेंगे अभी, उस पर जी तो मैम। कंप्लीट लंबी बात होनी है जी। अफशान अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम मैंने ये कहना था कि ये पेशेंट तो अब 34 वीक्स पे है ना, तो मैम 34+6 है, तो इसको तो मैम आपने जिस तरह बताया कि स्टेरॉइड कवर करके इसको हमने फिर डिलीवर करना होगा विदाउट बाय ऑपरेटिव मैनेजमेंट, डिलीवरी। जी मैम। मैम अगर 30 वीक्स हो पेशेंट फर्ज करें तो मैम उसमें तो फिर हमने उसको DIC का रिस्क सारा एक्सप्लेन वो करना तो होगा ना सारा कि करते हैं अभी, वो लीना का भी एक क्वेश्चन था 30 भी, पिछली पीछे जेस्टेशन में हम जाते हैं, रौनक ने जी कुछ पूछना शायद। मैडम जी एक मैम। और क्वेश्चन, सॉरी जी मैडम अफशान। मुझे पूछना है, मैम अगर मैं फर्स्ट टाइम मैडम इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस में एक चीज कही थी कि सीरम फाइब्रिनोजन, तो मैम फाइब्रिनोजन तो हम लोग इस तरह नहीं करते हैं, वो तो जब पेशेंट PPH में हो तब हम करते हैं, फाइब्रिनोजन का तो कोई रोल नहीं है कर आई लो गेस मैम। अगर है, सीरम जी मैम, फिब्रिनोजन इज अ पार्ट ऑफ कोएगुलेशन प्रोफाइल विद FTPs। ओके मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू। जी रौनक वेलकम। मैडम मुझे ये पूछना था कि अगर ये फर्स्ट ट्रेन जो है वो अगर कैथोलिक है तो उसको हम डिलीवरी का ट्रायल नहीं देंगे पेशेंट को, अगर मैं ट्रिपलेट पेशेंट ट्रिपलेट को नहीं देंगे, ट्रिपलेट बेशक पहला किफायले का है जो है, ट्रिपलेट का मोड ऑफ डिलीवरी इज सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। ट्विन के उसका अंदर अगर होता है कि अगर पहला के पहले क्या है तो आप वो देख लो और थोड़ा सा आप इसकी देख लो कि दोनों ट्विन जो बेबीज है उसका डिफरेंस ऑफ वेट कितना आ रहा है दोनों बच्चों का, उसमें थोड़ी सी बात होती है लेकिन मेन प्रेजेंटिंग ट्विन की बात होती है, लेकिन ट्रिपलेट का मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन। मैं अगर फर्स्ट टाइम ट्रेन जो है वो अलाइव बेबी हो तो फिर हम नहीं देंगे ट्रायल उसको पेशेंट को। ये इस पे कंट्रोवर्सी है, अगर एग्जाम में सेफ रहो या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में सेफ रहो तो बेहतर है कि आप जो है ट्रिपलेट में सीधा सिजेरियन ही कहो। देखो उसमें बात ये होती है कि चलो एक ट्विन तो डिलीवर हो जाए कि पहले क्या, बट यू नेवर नो पीछे जो दोनों ट्विन्स हैं वो आपस में लॉक ट्विन्स बन जाए या क्या प्रेजेंटिंग पार्ट्स हो, तो एग्जाम तो किताबों में और गाइडलाइन में ट्रिपलेट का तो सिजेरियन ही मैंने पढ़ा है ज्यादातर, ठीक है ना। जी मैम। हाउएवर ये बात नहीं मैं कह रही, मैंने कुछ जो कुछ जो और स्टडीज है, कुछ ऑथेंटिक आर्टिकल्स, उसके अंदर मैंने जो आप बात कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो वो है, लेकिन हम हमारे लिए आई थिंक गाइडलाइन और वो चीजों का रेफरेंस ज्यादा हम दे सकते हैं, और सेफ भी समझ यही आता है कि टू बी ऑन द सेफ साइड ट्रिपलेट को इस तरह ना करें, तो सिजेरियन ही बोलना है आपने ट्रिपलेट में, ठीक है, और बेटर डू द सिजेरियन सेक्शन इन ट्रिपलेट, इस तरह के ट्रायल्स नहीं, पर आपने उसका HB ठीक रखना है और ब्लड अरेंजमेंट्स पूरी रखनी है। अच्छा अगर अब यही पेशेंट हमारा फॉर एग्जांपल 30 या लेट्स मेक इट 28 वीक्स, फिर रौनक क्या करेंगे, क्योंकि रौनक की प्रेजेंटेशन है तो रौनक की, अब रौनक आप मैनेजमेंट बताओ, शी वाज द सेम पेशेंट विद 1 or 2 IUDs,
and one alive baby, triplet pregnancy, the same monochorionic triamniotic twins, उसको अब आप लेके चलो, शाबाश. Ma'am, first of all, I will counsel the patients and her attendant in a very empathic way and educate about the risk to the alive baby, that the mother and fetus have the implications, and that the mother is the risk of the blood pressure, hypertension, and GDM and abruptio, and baby is also at the risk of the IUD and stillbirth and NICU admissions. After explaining, then I will admit the patient in the ward and keep her monitoring of the fetal-maternal surveillance. And I monitor the mother for the eclampsia, hypertension, and for other problems, and also monitor the baby weekly, CTG weekly, and Doppler weekly, and growth scan 2 to 3 weekly, and also ultrasounds of the baby weekly. To monitor the baby, and also biophysical profile and kick count chart, and her cognition profile 2 weekly. And if everything is normal, I and also give the straight cover. And if everything is normal, so I keep pregnancy up to the 35 week because of triple pregnancy. And I also monitor the baby that there's a no any Doppler abnormality or other any problem in the baby. If everything is going normal, so I will keep the pregnancy up to 35 week and deliver by C-section. ये Not मैम bad, आपका स्टाइल अच्छा है, लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी अपनी टोन ऊपर नीचे करो ताकि सुनने में भी कुछ समझ आए. एक एक बात है, देखो, क्योंकि आप तेज तेज बोल रहे थे तो एक दो चीजें थोड़ी गलत भी बोल दिया, जैसे कोएगुलेशन प्रोफाइल आपने 2 वीकली बोल दिया, इस तरीके की बात है, तो इसलिए उस चीज को भी बहुत ध्यान से बोलना है. मैम देखो, बात मैम ये है कि आई डोंट नो, यू स्टार्टेड एंड यू सेड यू विल, हु विल इट, मुझे बताओ, कोई जस्टिफाई करे, आप पहले करो कि आपने तो कर दिया अपनी बात से कि एडमिट एडमिट किया, एंड व्हाई डिड यू एडमिट हर? इज देयर एनीवन हु विल से कि आई विल मॉनिटर हर ऑन ओपीडी बेसिस, आई विल नॉट एडमिट हर? कोई उसको भी जस्टिफाई करे. मैम मैं बताऊं? जी. मैम पेशेंट को मैम ऑफर करेंगे एडमिशंस, अगर वो फॉलो पे आ सकती हैं ठीक से, अगर आ सकती है वीकली, तो उसको हम तो आप मैम एडमिशन ना बोलो ना, बिकॉज जी आपकी मैम बात से मैं नहीं, मुझे जस्टिफाई हुआ कि आपने एडमिट किया. पेशेंट इज हियर विद ऑल द लैब्स नॉर्मल, शी इज नॉट हाइपरटेंसिव, शी इज ट्रिपलेट विद 2 IUDs एंड वन अलाइव बेबी. तो आप उसका वो देखोगे ना, IQ लेवल और उसकी कंप्लायंस चेक करोगे. इफ शी इज गुड टू कम बैक अगेन एंड अगेन विद द फॉलो अप, देन वेल एंड गुड. तो आप यूं ही बात करो कि आई विल डिस्कस विद देम कि क्या वो आ सकते हैं, क्योंकि एडमिशन तो एक तो महंगा बहुत हो चुका है पेशेंट्स के लिए. बेशक फ्री का वो उन्हें बेड में लाओ, लेकिन उन्होंने घर से आना होता है, खाना पीना, 2 लोग उसके साथ रुकते हैं. तो इट्स नॉट इजी फॉर एनी ऑर्डिनरी पर्सन टू स्टे इन द हॉस्पिटल. देन आजकल दुनिया जहान की इन्फेक्शन है, वो आई तो ट्रिपलेट विद वन लाइफ थी, गई है वो डेंगू लेके या गई है वो कोविड लेके, तो वो एक नई मुसीबत बन जाए, राइट? तो आजकल तो हॉस्पिटल एडमिशन वैसे ही मिनिमाइज हो चुके हैं, और इस पे ये बहुत ही सेंसिटिव बात है एग्जाम में. तो यू प्रेफरेबली डू नॉट एडमिट पेशेंट एक्सेप्ट कि आपको एक एक सही में एब्सोल्यूट किस्म की इंडिकेशन मिली हुई है कि दिस शुड बी एडमिटेड, जैसे प्री एक्लेम्पिया आ गया, या जैसे कुछ भी ऐसा, जैसे कोई ऐसी पेशेंट है जो शुगर घर से नहीं मॉनिटर ठीक करके ला सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये वाली पेशेंट तो अच्छी भली आई है, शी इज एट 28 वीक्स, व्हाई आर यू ऑफरिंग हर एडमिशन? ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वो तो फिर कुछ और लेके चली जाएगी हॉस्पिटल से. ठीक है, सो आप उसको उस तरीके से एडमिट नहीं करोगे, आप उसे ऑफर करोगे कि फर्स्ट ऑब्वियसली ऑप्शन विल बी कि उसको ओपीडी बेसिस पे मॉनिटर करो. आप उसे सारी लैब से कि उसकी कोएगुलेशन प्रोफाइल आपने करा ली है, वो नॉर्मल है, आप उसको 2 वीकली ग्रोथ स्कैन और डॉपलर उसको एडवाइस कर दोगे. और उसके अलावा आप उसको हफ्ते में 2 दफा, यानी एवरी 3 डेज कोएगुलेशन प्रोफाइल ऑफर करोगे कि वो करा कर लाएगी. तो शी विल कम टू यू एवरी मे बी ट्वाइस अ वीक, एक्चुअली शी इज कमिंग टू यू विद कोएगुलेशन प्रोफाइल. तो यू आर मॉनिटरिंग हर बेबी ऑल्सो, आप उसके बेबी के लाइव बेबी की हार्ट बीट वगैरह देख रहे हो. और फिर लाइव बेबी का 2 वीकली डॉपलर, 2 वीकली तो वैसे ही ट्रिपलेट में कराना है ना. अगर इसका तीनों लाइव होते या ना होते, या वो ट्राइकोरियोनिक भी होते, तो उसके अंदर तो यही है कि आफ्टर 24 वीक्स आप 2 वीकली उसके ग्रोथ स्कैन्स कराते हो, क्योंकि ट्रिपलेट्स आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ IUGR, राइट? तो वो आपने उस तरीके से कराते रहना है. और इस केस के अंदर यू टुक दिस प्रेगनेंसी टिल 35 वीक्स.
तो और कोई इसके बारे में कुछ बोलेगा तो बता दें, या कोई और ऑप्शन है कि कब तक लेके जाएंगे? मैम सॉरी, कोagulation प्रोफाइल का आपने क्या बताया है? हफ्ते में 2 दफा, ट्वाइस अ वीक। ओके मैम, थैंक यू। सारा ने क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन था, तो उसमें पेशेंट 28 वीक पे ट्राइकोरियोनिक ट्राई एमनियोटिक प्रेगनेंसी थी, एंड सर सेड के ये पेशेंट 130/90 बीपी के साथ फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आई है। जब मैंने उनसे स्कैन मांगे तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ भी अवेलेबल नहीं है। शी जस्ट केम फॉर फर्स्ट टाइम एंड शी जस्ट एडमिटेड एंड सेंट टू लेबर रूम, हैंडेड ओवर टू यू, नाउ यू हैव टू मैनेज योर पेशेंट। तो ट्राइकोरियोनिक ट्राई एमनियोटिक विद 1 IUD, हाइपरटेंसिव, 130/90 बीपी, एडमिटेड। जब मैंने डिलीवरी को उन्हें कहा कि सर आई विल प्लान हर डिलीवरी एट 35 वीक ऑफ जेस्टेशन आफ्टर स्टीरॉइड कवर, ही सेड आप सबको ट्रिपलेट को 35 वीक तक ले जाएंगी। मैंने यही कहा बात सर मैं इट्स करने लगी डिपेंड। थी। कितनी जबरदस्त बात है। ये 35 पे तो वो जाएगा जो लो रिस्क है। देखो 38, 39, 40 पे तो वो जाता है प्राइमरी पेशेंट जो कि लो रिस्क है। 40 तक मैंने कहा डायबिटीज इन ऑन डाइट कंट्रोल 40 वीक्स। आपने याद करना है डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन को कब डिलीवर करना है, डायबिटीज विदाउट कॉम्प्लिकेशन ऑन इंसुलिन को कब डिलीवर करना है, और डायबिटीज ऑन डाइट कंट्रोल को कब डिलीवर करना है। हाइपरटेंशन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन को कब डिलीवर करना है, हाइपरटेंशन विद कॉम्प्लिकेशन या हाइपरटेंशन विद प्री एक्लेम्पसिया को कब करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 35 भी यही यही तो, इसीलिए तो मैंने सवाल किया कि कोई और है जो बताए कि कब आप इसको करोगे। विल यू टेक दिस बेबी टू 35 वीक्स हु हैव गॉट 2 IUDs विद हिम इनसाइड द एब्डोमेन? 2 IUDs के साथ वो बेबी बैठा हुआ है, और उसको आप क्या 35 तक ये वेट कर रहे हो कि अगर 32 34 पे वो मेच्योर हो गया, लेकिन आपने उसकी क्योंकि ब्रेन स्पेयरिंग का वेट कर रहे हो या पेशेंट की कोएगुलेशन खराब होने का वेट कर रहे हो? नहीं। Even at 32 weeks, you can assess about viability. 32 weeks is a good gestation to deliver this baby. अगर आपको नर्सरी का कोई इशू है तो don't take the baby beyond 33 और 34 वीक्स। इवन 34, 33 या 34 वीक्स पे भी आप प्लान करो तो गुड इनफ, वरना 32 वीक्स तक भी ये बेबी लाइव आ जाए विद 2 IUDs इनसाइड एंड मोनोकोरियोनिक ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है ना? तो ये याद रखो, ये जो मैंने इतने सारे सिनेरियोस बोले कि डायबिटीज की कितनी सारी टाइप्स है कि किसको कब डिलीवर करना है, हाइपरटेंशन की कितनी सारी है, कार्डियक की कितनी सारी है, कार्डियक डिजीज विद मेडिसिन कंट्रोल को कब करना है, कार्डियक डिजीज विदाउट मेडिसिन को कब करना है, कार्डियक विद कॉम्प्लिकेशन या कार्डियक लेवल 4 वाली जो डिजीज होती है उसको कब करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें, बेशक वो एक ही डिजीज है कार्डियक, लेकिन उसकी भी डिफरेंट कंडीशंस है। सिमिलरली ट्रिपलेट हर एक को आप 35 तक थोड़ी लेके जाओगे। वो है जो लो रिस्क ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट तो खैर है ही हाई रिस्क, और फिर बीच में किसी ने टर्म यूज की तो वेरी हाई रिस्क। देयर इज नथिंग लाइक वेरी हाई रिस्क, शी इज हाई, या हाई रिस्क है लो रिस्क है, अपनी टर्मिनोलॉजी भी ठीक रखती है। जी मरियम। मैडम मेरे ख्याल से तो वी शुड डू द डॉपलर्स वीकली, इंक्लूडिंग द मिडल cerebral artery doppler along with the broad scans too weekly, and take the patient accordingly. We will decide on the doppler according to the dopplers that we are going to take the patient. Ma'am, I will take the patient, my aim is to take her to at least 34 weeks with steroid cover. I will give her the steroid cover and to do the cesarean परफेक्ट, section. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल, बहुत जबरदस्त। क्योंकि चलो, वरना 32 पे भी ठीक था, वरना क्योंकि हमारी नर्सरी ऐसी है तो चलो हम 34 की बात कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल ठीक है, 2 वीकली आप ग्रोथ स्कैन कराओ इसका, बेशक आप ट्वाइस अ वीक कोएगुलेशन प्रोफाइल कराओ, डॉपलर आप बेशक, बिकॉज शी हैज गॉट 2 IUDs, बेशक एसटी रेशियो ठीक भी आ रहा है, अगर आप वीकली भी कराओगे तो वो भी जस्टिफाइबल है। ठीक है। सारा ने कुछ लिखा है, सारा पूछ ही लो जुबानी, शायद बात हो चुकी है। सो गुड। और सो आई होप कि कुछ क्लैरिटी हुई है। ट्रिपलेट्स में 2 वीकली स्कैन्स शुरू हो जाते हैं, डॉपलर और ग्रोथ स्कैन 24 वीक से, और चाहे वो मोनोकोरियोनिक है, ट्राइकोरियोनिक है, या जो भी है। और उसके अलावा अगर उसके ऊपर IUDs हो गया तो जस्टिफाइबल है कि आप वीकली डॉपलर कराओ, 2 वीकली ग्रोथ स्कैन्स कराओ। और हर पेशेंट को आप एंड तक नहीं लेके जाते हो, जहाँ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई है उसमें आपको अर्ली करना पड़ता है। ठीक है। सो गुड रौनक, यू वर गुड। कहाँ गई रौनक? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए।
जी मैम। हाँ, शी इज हियर। सो ओवरऑल यू वर वेरी गुड। असल में बात ये कि आपकी बात को बड़े गौर से सुनना पड़ता है, मुझे ऐसे फील हो रहा है। बस बाकी सारी यही बातें। अब आपने आवाज भी अपनी ऊंची कर ली थी, विच इज वेरी गुड। मैम बस आपने जो है ना, स्माइल वाज लाइक। टोन को थोड़ा ऊपर नीचे करना है, थोड़ी जी टोन मैम। को ना, कि जब आपका एग्जामिनेशन हो स्टार्ट हुआ है तो अदर पर्सन शुड नो एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में भी जब आप इम्पोर्टेंट उस टॉपिक से रिलेटेड वाली जो बातें कर रहे हो ना, जैसे डीमा की बात हो गई या एनीथिंग लाइक दैट, तो वो चीज आप एम्फसाइज करके बोलो, ताकि उसे पता चले कि यू नो द थ्योरी, यू नो कि ट्रिपलेट में ये नहीं कि सारा जनरल फिजिकल तो आप हर एक में करोगे, लेकिन यू नो एग्जैक्टली कि ट्रिपलेट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि इसमें नॉर्मल चीज मिल सकती है। किसी ने, हफ्सा ने अच्छा क्वेश्चन किया है। हफ्सा आप पूछ रहे हो ट्रिपलेट्स विद फ्री फ्रॉम एट 28 वीक्स टाइम ऑफ डिलीवरी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ट्रिपलेट फॉर एग्जांपल ट्राइमनियोटिक है, एक का सैक लीक कर गया पहले का, फिर कोरियो एमनियोनाइटिस तो हो सकता है, ठीक है ना। तो कोरियो भी हो सकता है और सारा कुछ। तो देखो नॉर्मली तो प्री प्रॉम में उन्होंने कहा है कि जो अगर सिंगल प्रेगनेंसी है तो आप 37 तक भी ले जाओ। ट्रिपलेट में हम 35 को ले गए, 35 तक तो नहीं। हम अगेन देखो ट्रिपलेट में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, आप 35 तक तो नहीं, हम अपनी नर्सरी की वजह से 34 की बात करते हैं, वरना हम 32 पे भी प्लान कर सकते हैं। मैडम इसमें तो एडमिशन करेंगे ना अगर प्री फ्रॉम हो जाता है, लीकिंग हो जाता है इस केस में, क्योंकि इस प्री टाइम प्रॉम में किसी तो भी टाइम। एडमिशन कर लो। जी। प्री प्रॉम में इंडिकेशन एडमिशन इंडिकेटेड है, क्योंकि आपने उसे एंटीबायोटिक कवर करना है, आपने उसका सारा मॉनिटर करना है, कई दफा उसको फीवर ना, बिकॉज उसमें चाहे आप 24 to 48 आवर्स उसको एडमिट करो, उसको डेक्सा कवर दो, उसके अलावा आप उसको जब मॉनिटरिंग करोगे रिगार्डिंग पल्स और सारा कुछ, तो वो आप पेशेंट को भी बताओगे कि इस तरीके से मॉनिटर अगर घर भेज रहे हो तो आप 24 to 48 आवर्स के बाद उसे घर भेज सकते हो, सब सिखा के कि उसने घर में भी क्या मॉनिटरिंग करनी है, टेकिकार्डिया, टेंडरनेस, टीएलसी, वो सारा कुछ। और फिर 2 twice a week टीएलसी कराएगी और सीआरपी, वो सारा कुछ, ठीक है ना। 2 weekly, हाँ बिल्कुल ठीक है। जी मैं विष्णु सही कह रही हूँ। ठीक है, और बताएं। सो मैम ट्रिपलेट के अंदर भी देखो हर एक की जी। मैम अगर एक पेशेंट है ट्विन प्रेगनेंसी विद डायबिटीज और डाइट कंट्रोल, तो उसको फर्दर हम 37 पे डिलीवर करेंगे या 38 पर? नहीं, ट्विन को आप देखो, बात ये है कि ट्विन के अंदर अभी किसी ने सदफ नहीं, बड़ा अच्छा एक टेबल हमें किया, अगर सदफ दोबारा से शेयर कर दो तो अच्छा रहेगा, बिकॉज उसके अंदर उसने बताया कि मोनोकोरियोनिक आप 36 पे, डाइकोरियोनिक को आप 37 पे करते हो, 38 की तो बात ही नहीं हो रही ट्विन की, ठीक है ना। अब शी हैज गॉट डायबिटीज बट डाइट कंट्रोल्ड है, एंड इट्स अ ट्विन प्रेगनेंसी, तो यू कैन टेक, और डिपेंड कोरियोनिसिटी पे करेगा। अगर मोनोकोरियोनिक है तो 36 पे कर दो, डाइकोरियोनिक है तो 37 पे कर दो। बट अगर डायबिटीज है इंसुलिन पे या किसी और उस पे, तो फिर आप यू कैन कर सकते हो। टू रिस्क फैक्टर्स है, लेकिन डाइट कंट्रोल तो इम्पेयर्ड शुगर होगी ना, उसमें कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज तो नहीं है ना। सदफ ने शेयर कर दिए। सो क्विकली अगर मैं आपको बताऊं, ट्विन मोनोकोरियोनिक इज 36 वीक्स, डाइकोरियोनिक इज 37 वीक्स, ट्रिपलेट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन 35 वीक्स, विद कॉम्प्लिकेशन 32 वीक्स, हाउएवर यू कैन डू इट ऑन 34 वीक्स आल्सो आफ्टर विद मॉनिटरिंग। क्विकली अगर बात की जाए ऑब्स्टेट्रिकल कोलिस्टेसिस, किसी जमाने में हम 37 वीक्स पे करते थे, अब गाइडलाइन चेंज हो गई, उन्होंने बाइल्स एसिड्स और उन सब की बातें ऐड कर दी हैं, तो उस हिसाब से तो वो आगे 39 वीक्स तक भी ले जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली गाइडलाइन का याद कर लो, ताकि एग्जाम में वो बता सको। प्री प्रॉम का अब 37 वीक्स हो चुका है। कार्डियक डिजीज विदाउट एनी मेडिसिन 39 वीक्स, यानी कार्डियक डिजीज कंट्रोल्ड है और किसी मेडिकेशन पे नहीं है। अगर कार्डियक डिजीज स्टेबल पेशेंट है बट ऑन मेडिकेशन है तो 38 वीक्स पे। और डायबिटीज ऑन डाइट कंट्रोल 40 वीक्स, सिंगल प्रेगनेंसी डायबिटीज ऑन इंसुलिन 38 वीक्स, डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन लाइक मैक्रोसोमिया, पॉली एटसेट्रा, वो आप अकॉर्डिंगली करते हो, बट यू टेक द बेबी टिल 38 वीक्स एटलीस्ट। अगर आप उसको कंट्रोल वेल कंट्रोल करके 38 तक ले जाओ तो अच्छा है। इसी तरह पॉलीहाइड्रोएमनियोस को आप 38 तक और 38 तक लेके जाते हो। ओलिगो में डिपेंड करता है कि एसटी रेशो वगैरह के ऊपर, वरना ओलिगो को भी आप अगर बिल्कुल ही रिड्यूस लाइकर या एब्सेंट लाइकर नहीं हुआ तो 38 तक भी ले जाते हो माइल्ड ओलिगो को, वरना 34 वीक्स पे। और कौन से सिनेरियोज होते हैं, क्विकली मैंने कहा आपको बता दूं।
पीआईएच के अंदर भी यही है कि अगर वेल कंट्रोल्ड है तो यू कैन टेक पीआईएच टू 39 वीक्स एटलीस्ट, वरना आप उसको ऑन मेडिकेशन है तो 38 वीक्स, कॉम्प्लिकेशन है तो अकॉर्डिंगली आप 34 वीक्स पे भी देखते हो। और क्या है, मोनो और ये सारे तो मैंने आपको मैडम बता दिए। मैडम अक्सर हमारे पास ये होता है कि पॉलीहाइड्रोमियास मॉडरेट टू सीवियर, तो उसमें हम लोग एमनियो रिडक्शन कर रहे होते हैं। तो मैडम हर जगह पे तो हम एमनियो रिडक्शन नहीं कर रहे होते, तो ये जो मैनेजमेंट एमनियो होता है रिडक्शन जी। पॉलीहाइड्रोएमनियोस पे आपने काम हर जगह नहीं कर रहे होते, इसलिए नहीं कर रहे होते कि किसी को आता नहीं है या कंडीशंस नहीं है, क्योंकि एमनियो रिडक्शन इज नॉट अ वेरी बिग प्रोसीजर टू परफॉर्म, एनीवन कैन डू एमनियो रिडक्शन, यू नो। स्टेरलाइज्ड कंडीशंस हर हॉस्पिटल में क्रिएट की जाती है अगर किसी के लिए बहुत इंडिकेटेड प्रोसीजर हो। लेकिन आपने अपनी ट्रेनिंग में नहीं देखा एमनियो रिडक्शन बहुत ज्यादा, शायद एक मरीज का किया हो जिंदगी में, या बहुत ही कम, या सुना है। क्यों? इसलिए क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर पेशेंट, इसका फायदा ही नहीं कोई पेशेंट को। ठीक है, आप लोग जो ट्रेनिंग में कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, याद रखना मेरी बात। ये इसलिए नहीं हो रहा कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज पैदा हो जाते हैं जिसमें वाकई इंडिकेटेड हो वो चीज। किसी में वाकई एमआरआई चाहिए हो तो एमआरआई आप अरेंज हो जाता है, किसी को वाकई कुछ चाहिए हो तो दुनिया जहान से आप लोग ज़कात ये वो करके अरेंज करते हो। एमनियो रिडक्शन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एमनियो रिडक्शन का फायदा ही नहीं पेशेंट को। इधर एमनियो रिडक्शन हुई 24 आवर्स में, उसका दोबारा लाइकर बन जाना है। इसलिए एमनियो रिडक्शन सिर्फ उस पेशेंट में होती है जिसका तो जीना ही खराब हो जाए, मतलब जो करवट तक नहीं बदल सकती। दीज आर वेरी वेरी रेयर केसेस। तो बिफोर पुटिंग इन द नीडल इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ अ पेशेंट, यू टेल द पेशेंट कि इसका फायदा कोई नहीं होना, क्योंकि इधर मैंने एमनियो रिडक्शन की 24 से 48 आवर्स के अंदर वो लाइकर दोबारा सारा आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली 2 आवर्स में ही लाइकर दोबारा बनना शुरू हो जाता है। अब 1 लीटर आपने फ्लूइड निकाल लिया, खैर चलो वो तो अलग ही मुसीबत, क्योंकि वो अब्रप्शन, उसके अपने कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, वो भी थोड़े रेयर है। कुछ भी नहीं होता वैसे तो, लेकिन मसला ये है कि फायदा नहीं होता। तो आप पेशेंट को ये कहते हो कि जब तक बहुत ज्यादा मसला ना हो जाए आपको तो मुझे बताएं। फिर वो जब ये बातें सुनती है तो आपको असल बात बताती है कि गुजारा हो रहा है, जितना गुजारा हो रहा है किए जाए, क्योंकि कितनी दफा एमनियो रिडक्शन बहुत दफा तो नहीं होगी ना। सो एमनियो रिडक्शन इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टॉक अबाउट इन एग्जाम ऑल्सो। Madam, पेशेंट की diabetes on insulin, time of delivery. डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड ऑन इंसुलिन 38 वीक्स, ये मैं बोल चुकी हूँ, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना सारा। रौनक जी पे जी क्या सर। क्वेश्चन करना है? मैम ये पूछना है कि अगर ये ट्रिपलेट प्रेगनेंसी अगर आईयूडी अगर 16 वीक पे हो जाए तो फिर मैम उसको क्या ऑप्शन देंगे वेरी पेशेंट बैड। को? हाँ देखो, जितना अर्ली आईयूडी हो हम सबको पता है कि उसमें प्रोग्नोसिस कितना बुरा होना शुरू हो जाता है, तो वो उसे अकॉर्डिंगली उसको सारा बता देंगे। मैम मैम फीटोसाइड नहीं करेंगे जो मैम करते हैं इसको क्या? मैम ये कहीं फीटोसाइड्स करेंगे करते हैं ना? किसको? तो साइड चलाई एक बेबी आईयूडी हो गया। मैम ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में अगर मैं एक आईयूडी होगी तो उसको मैम कर दें, वो मैम पेशेंट को ऑप्शन देंगे या मैम हमारे पास वो अवेलेबल है अगर अर्ली हो जाए नहीं, उसको मैम क्या आईयूडी? ऑप्शन लेंगे? एक आईयूडी हो गया, आप कह रहे हो उसकी डिलीवरी कर दें? समझ नहीं आया क्वेश्चन रौनक। मैम अमाइन रिडक्शन करते हैं दूसरा मैम फीटोसाइड्स करते हैं ना? एमनियो रिडक्शन, हाँ ये मैम कह रही हूँ। एक आईयूडी हो गया तो एमनियो रिडक्शन क्यों करनी है? कुछ आप फीटोसाइड कंफ्यूज हो गए मुझे लगता है। नहीं मैम ये एमनियो रिडक्शन तो फीटोसाइड का पॉली में पूछ होता है। रही हैं। मैम ये किसका? फीटोसाइड का पूछ रही हैं। मैम फीटोसाइड का कि अगर 16 वीक्स पे मतलब किसका ट्रिपलेट्स में से फीटोसाइड करना है? लाइव बेबी का? ये कह रही हैं कि अगर नहीं एक मैम बच्चा जो आईओडी आईयूडी हो बेबी जाए उसका मैम तो उसका फीटोसाइड क्या उसका पूछ करेंगे? रहे हैं उसको करना है मैम, उसका ऑप्शन देने पेशेंट को। नहीं, 3 बेबीज हैं, उसमें से एक आईयूडी हो गया तो फीटोसाइड किसका करना है? जो मैम अच्छा सही ठीक ठीक मैम। मुझे तो आपके क्वेश्चन की कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। किस चीज का ऑप्शन? वो तो पहले ही नॉर्मल में फौत हो गया डालते हैं। बेबी। हम्म एबनॉर्मल में फीटोसाइड देना है। क्या? अगर कोई एनॉमली आती है फीटोसाइड, तो देखो नहीं, नॉर्मली की तो बात ही नहीं है। आपने फीटोसाइड करना कब है? देखो ये चीजें ना बड़ी स्पेसिफिक है, और फ्रैंकली यू हैव बीन डूइंग इट इन योर वार्ड्स आल्सो। लेकिन वही बात है कि जो रेयर केसेस होते हैं ना, वो फिर आपको लगता है कि शायद क्योंकि हमारे वार्ड में हमारी ट्रेनिंग में आई 2 ऐसे मरीज थे तो क्या पता 10 आते तो उसमें से किसी एक का वो भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सो द थिंग इज के जो जब फीटोसाइड की बात आएगी तो फीटोसाइड तो सिर्फ उसमें होता है कि आई डोंट नो, यू मस्ट नॉट हैव येट सीन सच अ पेशेंट, या किसी ने देखा भी होगा कि 7
फीटसेस की प्रेगनेंसी थी, ओवुलेशन इंडक्शन नॉन स्टॉप ले ली पेशेंट ने, और वो कंसीव करके आई तो देयर वर 7 फीटसेस। नाउ 7 फीटसेस की प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना इज नॉट अ लॉजिकल थिंग, सो यू डू फीटोसाइड। आप उसको केसीएल या वो चीज उसके उसके हार्ट में इंजेक्ट करते हो ताकि 3 बच्चे बच जाए, इफ नॉट 7, राइट। तो 3 जो सबसे हेल्थी एम्ब्रियोज होते हैं उनको आप रहने देते हो, और जो इजीली एक्सेसिबल हो। उसके अलावा देयर इज नो इंडिकेशन, अगर एनॉमलस बेबी आ गया है ट्रिपलेट में तो यू डोंट डू फीटोसाइड, यू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। ठीक है, फीटोसाइड आप एनॉमलस की नहीं करोगे, वो तो आईयूडी की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगी फिर, और फीटोसाइड इटसेल्फ कैन कॉज प्री टर्म एंड मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। ये फीटोसाइड इटसेल्फ एक प्रोसीजर है जो कि मिसकैरेज भी करा सकता है। तो जब आपके पास बेनतहा मल्टीपल प्रेगनेंसीज का पेशेंट आ जाता है जिसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होना ही पॉसिबल नहीं है, या जो कि बहुत ही खतरनाक या बुरा है, तो उस केस में फिर आप फीटोसाइड की डिसीजन लेते हो, उसके अलावा तो किसी में ऑप्शन नहीं है। ठीक जी है, मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, गुड। सो आज बहुत अच्छा केस था रौनक, एंड व्हाट आई लाइक कि आप प्रिपेयर्ड आए हुए थे, तो हम इसको हर तरह का सिनेरियो बना के डिस्कस कर सके। तो इसी तरह जिसका नेक्स्ट केस हो, आई थिंक अगर प्रिपेयर्ड आओ तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी बातें हो जाती हैं, और सिनेरियोज की डिफरेंट हम उसके हर तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो गुड, ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम करते हैं। आई थिंक इट वाज वेरी गुड। अगर इसी तरह रौनक अपनी तैयारी जारी रखेगी, थोड़ी सी अपनी टोन को बेहतर कर लेगी, तो ये वाला केस भी इसका पास था एक्चुअली, एक्सेप्ट कि इसने टाइम ऑफ डिलीवरी में ब्लंडर मार दिया, वरना अदर थिंग्स वर गुड। सो इंशाल्लाह अब हम जो है नेक्स्ट टाइम हम फिर करते हैं।